नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं उस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामगियाल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Avaria Kochabu to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. And to all our viewers in Kerala, Swagatam. To all our viewers in Tamil Nadu, Vanakkam. So Pradeep ji, sad day today. Finally, officially, Dharmendra साहब चले गए। धर्मेंद्र जी हमें छोड़ के चले गए। Very good friend of mine. बहुत अच्छे मित्र थे हमारे। अब मैं तो सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि मेरे बड़े अच्छे मित्र थे। He used to keep promising to come home. बोले मैं तेरे घर आ रहा हूँ Very close. आलू का पराठा खाने के लिए। मैं कहा जी आइए, लेकिन आए नहीं। इसके बावजूद के घर के बिल्कुल साथ नहीं रहते थे और जब भी उनको मिला हूँ इस तरीके से मिलेंगे जैसे ऐसे फीस माई लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर। मतलब इतना अपनापन और इतना खुलापन मैंने आज तक कभी किसी और फिल्म स्टार में देखा नहीं। हाँ नहीं, एक्चुअली दैट इज नॉट ट्रू। देवानंद साहब भी ऐसे ही हुआ करते थे, लेकिन धर्मेंद्र साहब, धर्म जी, we really miss you, we love you. That is the interview that I took. Yes. Can we hear that please? I would like to hear that interview. Can we show that please? जरा देखें वो क्या है, आप लोगों ने क्या क्लिप निकाला। राजीव, मैं जब भी देखता हूँ आपको इंटरव्यू करते हो तो लगता है कुछ मेरी झलक आती है आप में। शायद आप ऐसा लगता है कि बहुत ही नेक इंसान है आप। क्या बात है साहब, क्या बात है, क्या बात है। शक्ल से पहचान जाते हैं। कमाल है साहब। राजीव, Right. Fantastic. So our boys didn't want to repeat that. I shouldn't get a very big head. मतलब उनका ये था कि बजाज साहब कहीं ज़्यादा खुश ना हो जाएं, इसलिए इसको दोबारा में दिखाइए। धर्मेंद्र साहब मेरी तारीफ कर रहे हैं, but in any event, I really loved this man. He was absolutely fantastic, and so did the rest of the world. In fact, ये कहा जाता है दिलीप साहब के बारे में, दिलीप कुमार साहब के बारे में, कि जिस दिन मेरी एक ही मैं खफा हूँ अल्लाह से सिर्फ एक ही बात पर कि जब मैं उनसे मिलूंगा मैं उनसे ये ज़रूर पूछूंगा कि आपने मुझे धर्मेंद्र जितना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। ये दिलीप कुमार साहब के शब्द हैं साहब। I mean, amazing, absolutely Fantastic. amazing. I mean, And our hearts go out to his entire family, everybody, all the boys, all the girls, Mrs. Prakash Kaur, Himalini ji. Oh God, he was an amazing man, really and truly an amazing man as far as Dharmendra is concerned. Great guy. I don't think there'll ever be another Dharmendra ever. I mean, he could do any kind of role wherever, and of course he was a BJP MP, as is his wife Himalini ji. But amazing man. He two was or my three, neighbor. three things that people always remember of him of the Sholay movie, the way he acted there, and then the Jamla Pagla Diwan, the dance that his Dharmendra dance was a very famous. That you put a hand in the front, and anybody identifying or themselves with Dharmendra would do that dance, and that dance was very typical of Dharmendra. That's right, and amazing, in fact, I had the opportunity of interviewing him again with Sunny Deol, and I think Anil Sharma, the director of Gadar, and a couple of other. Neeraj was also there, I think, the writer. Not Neeraj the poet, the Neeraj the film writer. He was also there. Very, very nice. And even there, the way Dharmendra Saab behaved was, मतलब वो तो मुझको तो ऐसे ट्रीट कर रहे थे कि जैसे बिल्कुल मैं फैमिली का आदमी हूँ, इस तरीके से. And he lived next door. He was an amazing guy. Fantastic man, absolutely. Can we play that again? I would like to hear that again. I know you guys don't want to play it. मुझे मालूम है कि आप लोग उसको प्ले नहीं करना चाहते, लेकिन फिर जरा दोबारा दिखा दीजिए. अभी जो आपने क्लिप दिखाया ना, जरा दोबारा दिखाइए प्लीज. दोबारा दिखाइए. राजीव, मैं जब भी देखता हूँ आपको इंटरव्यू करते हो तो लगता है कुछ मेरी झलक आती है आप में। शायद आप ऐसा लगता है कि बहुत ही नेक इंसान है आप। क्या बात है साहब, क्या बात है, क्या बात है। शक्ल से पहचान जाते हैं। कमाल है साहब। राजीव, मैं जब भी देखता हूँ आपको इंटरव्यू करते हो तो लगता है कुछ मेरी झलक आती है आप में। शायद आप ऐसा लगता है कि बहुत ही नेक इंसान है आप। क्या Right, so that was about Dharmendra. We can do a full program on Dharmendra ji, maybe tomorrow or day after. But in the meantime, Modi ji is back. Yeah.
Mr. Narendra Modi, our Prime Minister, is back from South Africa. G20 summit के बाद वो वापस आ गए हैं और G20 summit के दौरान the entire spotlight was on Narendra Modi ji. Yes. Absolutely fantastic. I mean, I am so happy. And what I'm sad about is the manner in which he's being attacked for laughing and smiling and, talking to people. I don't know what's happening here. What is the matter with you guys? अरे मोदी जी अगर हंस रहे हैं लोगों के साथ, लोग उनके साथ खड़े होकर हंस रहे हैं, तो what is the matter with you guys? प्रदीप जी, हंसना नहीं चाहिए, मोदी जी हंसना नहीं चाहिए. But I mean, see, he's among the few top leaders of the world, and the other two being the other three being the U.S. president, the Russian premier, and the Chinese premier. yes, And the fourth person everybody talks about is Prime Minister Modi. Modi. So you need to appreciate that man has climbed where he is today. आप उसको ignore नहीं कर सकते. Ignore करके भी करोगे क्या? The whole world seems to be with him and they appreciate him, right? You talk about Israel, they say leadership. Netanyahu से बोलते हैं कि leadership मोदी जी से किया. How he stands to Trump. It looks eye to eye, stands tall, stands upright. That's the way you should be doing. and what we had said right over here in this show, as far as tariffs are concerned, A, they're not going to make too much of a difference to the Indian economy. Indian economy has really grown. Number two, Mr. Trump will withdraw all the tariffs very, very soon, and you watch in the first week of December, there will be a deal and everybody will say, good morning. That's exactly what's going to happen. And you remember, you heard it right here first. Can we go across to our guests, please? I think we have some guests with us. It's a very important panel of guests. Let's go to them. After a long, long time, Ambekar Sahab, namaskar. नमस्ते. How are you, sir? How are you? Missed you. We missed you, sir. Ambekar Sahab, namaskar. Or, mashallah, Sushil Vyas ji. Sushil Vyas ji of the Eknath Shinde party was also very, very, very busy. Well, I keep seeing your this thing on Facebook. और एकनाथ शिंदे साहब जिस तरीके से एक एक काम दिखा रहे हैं और एक एक काम कर रहे हैं, absolutely fantastic. And Advocate Sushil Vyas ji also went back in memory and his remembrance of Murli Devra. That was absolutely fascinating, very beautiful Absolutely. photographs. So we just remembered Dharmender ji. We must also remember my very dear friend Murli Devra sahab, who built up the Congress over here in Mumbai and in Maharashtra, and he was also Petroleum Minister and Finance Minister for a very short while. But great man, and I'm sorry to say that even the Congress has forgotten him. Well, no wonder his son is now with Eknath Shinde. अगर कांग्रेस इसी तरीके की हरकत करती रही तो कांग्रेस बचेगी नहीं. तो अंबेडकर साहब, very good news. There is good news and there is very good news. मतलब के Standard & Poor projects India GDP at 6.8%. IMF projects it at around 6.7%, and Morgan's, they projected at 7.2%. I mean, what's going on over here? Number two, Indian exports in the month of October and November have actually crossed all expectations in spite of Trump tariffs. Number three, industrial index has also grown. Domestic consumption has covered up for whatever losses people said we would have to incur because of the gentleman we are seeing on screen right now and his tariffs. But as we have been saying all along, the tariffs are going to be paid by the American people. They're not going to be paid by the country of origin. हिंदुस्तान टैरिफ थोड़ी देगा भाई. अगर आपको हिंदुस्तानी गुड्स चाहिए तो आपको देने पड़ेंगे. So it's a great picture for the Indian economy. अंबेडकर साहब, प्लीज बोलिए. इट इज़ ए ग्रेट पिक्चर. मोदी जी को तो पहले से ये पता था कि ऐसा सब होने वाला है. ट्रम्प कितना बेभरोसे का आदमी है उनको मालूम था. उसके हिसाब से उनका अल्टरनेटिव प्लानिंग चालू था. आपने देखा रहेगा तो जो पीयूष जी गोयल है वो गए 6 महीने से हर एक कंट्री को विजिट कर करके उनका ये जो ट्रेड निगोशिएशंस है वो चालू कर रहे हैं और शुरू कर रहे हैं, किधर कंक्लूड कर रहे हैं. यूरोपियन यूनियन के साथ उन्होंने कंक्लूड किया, यूके के साथ कंक्लूड किया. तो ये सब काम उन्होंने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट शुरू किया था. इसका एक बेनिफिट अपने को ऐसा होगा कि जब ट्रम्प टैरिफ के वजह से जब वो सेटल डाउन होगा इशू, तो जो ट्रेड उसके वजह से जो थोड़ा बहुत कम हुआ था वो बढ़ेगा. तो ये इट विल बी एन एडिशनल बेनिफिट फॉर इंडियन इकोनॉमी. जैसा आपने बोला है वैसा ये जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है. और CIIT ने जो बताया था, जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स है, उन्होंने बताया था कि ये दिवाली में खाली
ये 6 लाख 5 हजार लाख करोड़ रुपए का ये हुआ है, तो ये सब उसको बेनिफिट होगा और भारत की इकोनॉमी जो हम जिस दिशा में जाना चाहते थे उस दिशा में जल्दी जल्दी दौड़ना चालू कर देगी. Absolutely. Just one second, Yes. one second, one second. Here, Ambedkar Sahab, I would like to ask you something. This is a very touchy subject, for me at least. आपके लिए कैसा मुझे मालूम नहीं है. You yourself, you are a very balanced, matured kind of person. सर मुझे बड़ा अजीब लगता है, very frankly speaking. I wish Asif Faruqi Sahab of the Congress was here, so we could ask him directly. Sir, the Congress एक environment जो है और एक Congress universe जो है, Congress leftist universe जो है, बार बार क्या है, जैसे रामाफोसा साहब की आपने तस्वीर देखी, दिस इज मिस्टर लूला, प्रेसिडेंट लूला ऑफ ब्राजील, उनके साथ मोदी जी हैं, जॉर्जिया मेलोनी ऑफ इटली, आवर व्हाट्स हिज नेम कायर स्टार्मर ऑफ यूके, दैट इज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, आवर इमैनुअल मैक्रोन, अपार्ट फ्रॉम दैट द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर. ये सब लोगों के साथ मोदी जी की अलग अलग तस्वीरें आई हैं, हंसते हुए, जोक करते हुए, सब कुछ करते हुए. तो जान के ये लोग क्या कर रहे हैं, देयर इज वन पर्टिकुलर लाइन विच दे हैव बीन गिवन, वो लिखिए, मोदी डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो एंड सो डज नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, व्हाट आर दे लाफिंग अबाउट. मतलब के मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ये किस किस्म की प्रवृत्ति है, ये किस किस्म की सोच है. मतलब भले भारत की ऐसी की तैसी हो जाए, आप मोदी जी की प्रशंसा नहीं करेंगे, आप मोदी जी को एक्नॉलेज नहीं करेंगे. व्हाट इज गोइंग ऑन हियर सर, प्लीज अंबेडकर साहब, व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस. ये बेसिकली जो है कांग्रेस अभी सेल्फ गोल करने में लगी हुई है. उनके जो नेता है उनमें बहुत अस्वस्थता है, जिसके ऊपर उनको ध्यान देने के लिए समय नहीं है. उनके प्रवक्ता, उनके राजीव गांधी की जो पूरी कोटेरी है, वो पूरे लोग जो काम कर रहे दिन रात, वो इतना ही काम कर रहे हैं कि मोदी जी के कोई दोष निकाले और उसके ऊपर टिप्पणी करे. तो ये उनका क्या बोलते हैं, निगेटिव मानसिकता में वो गए हुए हैं. उनका एग्जिस्टेंस मोदी को गाली देने के ऊपर यदि वो बनाने को चाहेंगे तो वो कभी बनेगा नहीं, क्योंकि लोग जो है खुद का अंडरस्टैंडिंग रखते हैं. या एक बात बार बार बोलने से लोग उसके ऊपर भरोसा करेंगे, ऐसा राहुल गांधी को गए 11 साल लगता है. इसलिए वो बार बार नए नए मुद्दे लाते हैं. पहले बोले कि ये चौकीदार चोर है, पहले बोले राफेल में कोई भ्रष्टाचार हुआ है, बाद में बोले ईवीएम मशीन बेकार है, बाद में बोले संविधान खतरे में है, बाद में बोले वोट चोरी हुई है. तो ये निगेटिव पॉइंट्स वो लाते हैं और उसके ऊपर अपना स्पेस बनाने का कोशिश करते हैं. तो भारतीय मानसिकता में निगेटिविटी को कोई स्थान नहीं है, उनकी स्पेस इससे बनेगी नहीं. Ambedkar sahab, but one thing that ये तो ठीक है, रोजी पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी वर्ल्ड वाइड जो एजेंसीज है, दे कोटिंग फैंटास्टिक फिगर्स फॉर इंडिया. बट जयराम रमेश जो आजकल में कंटिन्यूस लगातार बोल रहे हैं कि द फॉलिंग रूपी और प्राइम मिनिस्टर मोदी, द देन चीफ मिनिस्टर इन 2013 जो बयान दिया था, तो क्या वो बयान आज एप्लीकेबल नहीं है क्या? So now there is somewhere that you have to answer this question, because the rupee is falling. Rupee is falling and it's been continuously falling and it's falling more. How is Prime Minister Modi going to stop it? Ambedkar sahab. रुपी इज नॉट फॉलिंग, द डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग. ये जो डॉलर इकोनॉमी है उसको पर्याय देने के लिए, उसको सब्स्टिट्यूट देने के लिए मोदी, बाद में पुतिन, बाद में चाइना, ये इकट्ठा आए हुए हैं. प्लान चल रहे हैं और वो प्लान जब सक्सेस में आ जाएंगे तब इनको मालूम पड़ेगा कि ये डॉलर इकोनॉमी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है. लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं अपने दर्शकों को बता दूं, एट द मोमेंट द डॉलर इज एट 89-17 रुपीज टुडे. सैटरडे को 89-64 पे था. द पॉइंट इज व्हाट इज गोना हैपन नाउ इज इन डिसम्बर, बिकॉज क्रिसमस इज कमिंग. एंड अंबेडकर साहब, यू वुड बी अवेयर, आई डोंट नो वेदर सुशील व्यास जी इज अवेयर और नॉट. यू नो व्हाट्स गोना हैपन, राइट? ऑल इंडियन एक्सपोर्टर्स are going to gain a huge windfall as long as the dollar keeps strengthening. मैं कहता हूँ डॉलर आज 100 रुपए का हो जाए, हिंदुस्तान will earn at least $3 to $4 billion in just the next month. That's what is going to happen. ये लोग रियलाइज नहीं कर रहे. तो सर मेरा ये कहना है कि जब प्रॉब्लम क्या है सर, ये, और बाय द वे फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो मेनी टाइम्स अर्लियर आल्सो आई हैव बीन कॉल्ड खागी चड्डी वाला, पता नहीं क्या कुछ, और हर एक को ये मालूम पड़ गया कि भैया मैंने नानाजी देशमुख के साथ काम किया है वगैरह वगैरह वगैरह. तो उसके बाद पता है ये तो आरएसएस का आदमी है. अबे यार, ये अकेला चैनल है जहां पे हम लोग कांग्रेस को, जेडीयू को, समाजवादी पार्टी को, हर एक को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपको जितना बोलना हो बोलो. बट दैट्स ऑल राइट बाय मी. आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद व्हिचएवर वे आई एम डिस्क्राइब. माय पॉइंट इज सर, मोदी जी का अब ऐसा हो गया है कि जैसे प्रदीप जी ने अभी बोला शो शुरू होने के पहले, आफ्टर दैट आई विल गो टू सुशील व्यास, आई वुड लाइक योर कमेंट ऑन दैट,
किसी भी इंटरनेशनल समिट होता है, कोई भी कहीं पर चीज होती है, इमीडिएटली द स्पॉटलाइट शिफ्ट्स टू मोदी. सर, ही इज द हीरो. सर, इट इज लाइक अमिताभ बच्चन बॉलीवुड में, सचिन तेंदुलकर ऑन द क्रिकेट फील्ड, विराट कोहली ऑन द क्रिकेट फील्ड. सर, ऐसा है, ये कमाई जाती है इज्जत, ये इज्जत अपने आप नहीं आती है. अब आप बताएं सर. अम्बेडकर साहब, आई वुड लाइक टू हियर यू से इट प्लीज. बेबाक होके बोलिए सर प्लीज. मोदी जी ने खुद के बारे में बोला था कि जो फॉर्मल रिलेशन है, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसके आगे जाके पर्सनल रिलेशन डेवलप करने में मैं रुचि रखता हूँ. वो मेरा स्वभाव है, बेसिक स्वभाव है, और उस हिसाब से वो बर्ताव करते हैं, जिसके वजह से उनके बारे में वो एक आपुलकी तैयार हो जाती है, जिसका हम न्योता या जिसका परिणाम हम देख रहे हैं सब जगह. तो ये उनका नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी है, जिसको उन्होंने अच्छी तरह से स्किल वो एक डेवलप किया है कि कैसे लोगों के साथ रैपो बढ़ाया जाए, और उसमें वो माहिर हो गए अभी. एब्सोल्युटली. प्रदीप जी, टू सुशील व्यास जी. व्यास जी, आज फिर आदित्य ठाकरे जी कहा कि वोट चोरी एक्सपोज्ड. वेलकम आसिफ. वोट चोरी एक्सपोज. आसिफ फारूकी जी, वेलकम टू द शो. आसिफ भाई, वेलकम टू द शो. आसिफ फारूकी साहब. आसिफ फारूकी साहब वॉज एट द स्पा, तो इनको देर हो गई थोड़ी सी, फिर उनको मेकअप कराना था, मसाज कराना था उसके बाद, इसलिए वो लग रहे हैं बिल्कुल हीरो लग रहे हैं. एडवोकेट सुशील व्यास जी, वही आदित्य ठाकरे जी फिर वोट चोरी को एक्सपोज. उन्होंने कहा 21 डेज टाइम फॉर ऑब्जेक्शन इज मैंडेटरी, और आप नहीं दोगे. इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सेडिशन चार्ज लगना चाहिए, बिकॉज इफ प्रूव सेडिशन चार्जेस शुड बी इनकॉर्पोरेटेड अगेंस्ट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर. 21 डेज देना पड़ेगा, इलेक्शन रद्द करो बीएमसी. व्यास जी, आपका स्टडी अच्छा है इलेक्शन और इलेक्शन हर चीज में, प्रोसेस में. नमस्कार नानियार जी, बजाय. यस यस. आपने जो जिन युवा नेता का नाम लिया, अब एक फैशन हो गई है, दिल्ली से लेकर गली तक हर नेता अपने आप में वोट चोरी का एक नया हथकंडा लेकर सामने आता है, कहने लग जाता है कि इस तरह से हुआ, उस तरह. अरे भाई, आपके पास अभी समय है. मुंबई महानगर पालिका का चुनाव, थाना महानगर पालिका का चुनाव, नागपुर, संभाजी नगर, सब जगह जनवरी में होने वाला है, और एक एक बूथ में 1200 वोट मैक्सिमम हो सकते हैं. तो आपके पास क्या इतने कार्यकर्ता नहीं है कि जाके एक एक बूथ में सर्वे कर ले कि कितना, कौन सा जेन्युइन है, कौन सा गलत है, डबल है, नहीं है, इलीगल हटा दिया गया. अबे, आपके पास इनफ टाइम है. नाउ यू हैव टाइम इन योर हैंड. और आप खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के अपना चेहरा दिखाते रहोगे, हवा में बात करोगे. अब वो बताइए, चलिए, आपने जो कहा देशद्रोह का गुनाह लगा देना चाहिए एक संवैधानिक संस्था के ऊपर. सर, सेडिशन बोला है व्यास जी. सॉरी आपको मुझे, मैं रोकना चाहूंगा. जो नया भारतीय, वो जो क्या है वो सर, न्याय संहिता जो आई, उसमें सेडिशन तो है ही नहीं सर. सर, अब मुझे, and I know, and I must say this, one second, this is for your information. व्यास साहब, अम्बेडकर साहब, आसिफ फारूकी साहब, this is for the information of all three. There is nothing about section 124A, namely sedition, which I don't know. I have been sent to jail for sedition 4 times by the Congress government. आदरणीय सामान्य कांग्रेस सरकारों ने मुझको जेल भेजा है सर 4 बार. भाई, इसीलिए which is why I wear it like a medal. उस तरह की धारा नहीं रखी है सर, है ही नहीं. सेडिशन इज गॉन, देयर इज नो सेडिशन. बट आदित्य ठाकरे जी ने बोला है कि सेडिशन. राजकुमार अपने अपने दल के, चाहे वो राहुल जी हो या आदित्य जी हो, ये आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने कहते हैं, तो किस आधार पे कहते हैं, किस कानून के अंतर्गत कहते हैं? कम से कम उस धारा का तो उच्चारण कर दे जनता के सामने, तो जनता का नॉलेज बढ़ेगा कि भाई किस तरह से ये देशद्रोह बनता है. ये एक संवैधानिक संस्था अपना कार्य करती है, और अगर उसमें मान लो किसी तरह की कमी है, तो भारत की न्यायालय है, आप जाइए रिट पिटीशन फाइल करिए अंडर आर्टिकल 226 या आर्टिकल 32 इन सुप्रीम कोर्ट, अब फाइल करिए रिट. अब वो भी आप करोगे नहीं, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस लोगे अपनी बातें कहने के लिए, ओछा प्रचार करने. ये तरीके सही नहीं है. इससे हम संवैधानिक संस्थाओं के जो मनोबल को तोड़ते हैं और उनके प्रति जनता का विश्वास है उसको कमजोर कर रहे हैं. हाँ, अगर आपके पास कोई ठोस आधार है किसी चीज के आरोप लगाने का, तो आप उसको कहिए. पर आप ये कहोगे किसी का नाम दोबारा है, तिबारा है, तो भाई ठीक है, अभी समय है, उसको कटवा दीजिए. देयर इज अ फॉर्म 7, यू रेज एन ऑब्जेक्शन, गेट इट डिलीटेड. और आप कहते हो ना, आपके पास एकदम कार्यकर्ताओं की पार्टी, और 25 साल आपने मुंबई महानगर पालिका पे राज किया, तो आपके पास इतने कार्यकर्ता तो होंगे ही.
कि एक एक बूथ में जाकर के पता लगा लें कि वहाँ कितने लोग पलायन कर गए, कितने लोग दोबारा मतदान में मतदाता सूची में आ गए। तो ये सारी चीज होमवर्क किए बिना आकर के वहां एक बहुत अच्छा साधन चुन लिया उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं वोट चोरी के जैसे एक बड़ा सा अच्छा सा सब। भाई पहली बात तो ये बताइए, वोट चोरी हुई कहाँ? अभी तो मतदान ही नहीं हुआ तो वोट चोरी कहाँ से हुई? न तो अभी वोटिंग लिस्ट आपके सामने फाइनल आई है, न तो आपका नोटिफिकेशन इलेक्शन का निकला, तो वोट चोरी कहाँ से हो जाएगी? क्या आप हवा में वोट चोरी कर रहे हो? तो ये नाम्बियार जी, ये हताशा और निराशा में दिए गए बयान है, इसको हम लोग जरा गंभीरता से न ले तो अच्छी बात। राहुल गांधी जी ने आगे कहा, राहुल गांधी जी का आरोप है देयर इज chaos इन द कंट्री, द कंट्री इज इन chaos। बीएलओ जिस प्रकार से सुसाइड कर रहे हैं, बीएलओ डेथ, एडवोकेट सुशील व्यास जी, राहुल गांधी जी का बहुत चिंता का विषय है। He says imposed oppression in the country, that is what he says। क्या सरकार ने एक सप्रेशन ऑपरेशन जिस प्रकार से राहुल जी ने कहा, हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? बीएलओ डेथ तो हुआ है व्यास जी, प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। हाँ, मुझे बताइए कि कितने लाख बीएलओज पूरे ये जो 6 जगहों पे एसआईआर चल रही है इस समय अपॉइंट हुए होंगे। एक बीएलओ का कार्य क्षेत्र है मात्र 1200 वोट, और एक ब्लॉक के अंदर जो है वो 1200 वोट होते हैं, उनको उनके यहाँ जाना है। अभी तो जो स्टेज है वो सिर्फ फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेज है, अभी तक तो फॉर्म वापस आने शुरू नहीं हुए हैं। तो चाहे वो यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, मैं उसको इलेक्शन कमीशन के साइट को फॉलो कर रहा हूँ। अब तो वो फॉर्म सबमिट करीब 97 पॉइंट समथिंग % फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में इतना क्या स्ट्रेस आ गया, इतना क्या दबाव आ गया कि उस बीएलओ को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी भी व्यक्ति की जान जा रही है, लेकिन हमको ये भी पता लगाना चाहिए कि उसके पीछे असली कारण क्या है। ये हो सकता है कभी ये नेचुरल डेथ भी हो सकती है, किसी की बीमारी की वजह से भी हो सकता है। लाखों बीएलओ अपॉइंट्स हुए हैं या उसमें 2-4 हुए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ये नहीं कहता उसको कोई लाइटली नहीं लेता, लेकिन वो इस कारण से अगर उनकी मौत हुई, ये कहना गलत है। और देश के नेता विपक्ष को इस तरह से हल्की बात करना और उसको राजनीतिकरण करके मतलब जनता के बीच में एक भ्रम फैलाना, मैं समझता हूँ कि ये राजनीति की घटियापन है, इससे ओछापन राजनीति में हो नहीं सकता। लेकिन सुशील व्यास जी, एक छोटी सी बात आपसे जानना चाहता हूं। भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू हियर द केस टुमारो, कल केस है सुप्रीम कोर्ट में विद रिगार्ड टू लोकल बॉडी इलेक्शंस इन मुंबई एंड एल्सवेयर, लोकल बॉडी इलेक्शंस इन महाराष्ट्र। उन्होंने कहा है कि जो 50% लिमिट है रिजर्वेशन की, वो ब्रीच कर दी गई है, परहैप्स इनएडवर्टेंटली और हाउएवर आई डोंट नो, किसी देयर मस्ट बी ए क्लरिकल एरर कि 50% रिजर्वेशन का जो लिमिट था वो बेंथिया रिपोर्ट के मुताबिक भी है। एंड द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट टिल सच टाइम एज देयर इज अ पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट टू दिस, वी कैन नॉट allow this to happen. So what do you think will happen tomorrow, sir? Because the Supreme Court has said कि भाई अगर आप लोग इसको फिर दोबारा ठीक नहीं करते हैं तो then you postpone elections. तो भाई देखिए, परिषद की इलेक्शन तो पोस्टपोन नहीं होंगी, पंचायत की इलेक्शन तो नहीं होंगी जहां तक मैं जानता हूं, अभी अनाउंस ही नहीं हुए ना। लेकिन जहां तक के कॉर्पोरेशन इलेक्शंस हैं, अलग अलग कॉर्पोरेशन, कोई 12 कोई 18 कितनी 27 है ना सर, 27 के 29 कॉर्पोरेशन हैं। 29 हो सकता है दैट द सुप्रीम कोर्ट माइट रिलेंट ऑन द January 31st डेडलाइन एंड माइट गिव टाइम टिल April 30th, ऐसी स्पेकुलेशन है। व्हाट डू यू थिंक? आई एम नॉट आस्किंग यू टू स्पेकुलेट because you don't usually speculate, but I am asking you anyway. जी, बड़ी विनम्रता के साथ, चूंकि एक वकालत का पेशे में हूं, इसलिए मैं उच्चतम न्यायालय सर पॉलिटिकल जवाब दो ना, मैं आपको पहले कुछ बता नहीं सकता, लेकिन जो भी उच्चतम न्यायालय करेगा इस देश की संविधान की व्याख्या के अनुसार करेगा। संविधान में जो लिखा है उसके ओके, सो लेट मी पुट इट अनदर वे। आई न्यू यू वुड से दिस। अरे यार, आई न्यू यू वुड से दिस यार। इतना भी कभी इतना भी अपराइट नहीं होना चाहिए ना रूल बुक, कभी बोल देना चाहिए ना, अपने दिल की बात जरा मुंह पे आनी चाहिए ना सर कभी। अच्छा व्यास जी, मैं आपसे ये पूछता हूं, चलो अलग तरीके से पूछता हूं, ये हो कैसे गया? क्या हमारी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन, उनको मालूम नहीं था जब लॉटरी निकाल रहे थे? जैसे मुंबई के अंदर फॉर एग्जांपल जो लॉटरी निकली, रिजर्व सीट्स और ऑलमोस्ट 60%, 58-59% रिजर्व सीट्स बना दिए। सर ये कैसे हो गया सर? इतनी तो अकल होनी चाहिए सर सबको। नहीं, अब इट्स अ क्लरिकल एरर। क्या है? समझने में फेर हो रहा है कि अगर हम महिलाओं का जो रिजर्वेशन है
उसको अगर हम नॉर्मल रिजर्वेशन में गिनना शुरू कर देंगे तब ये परसेंटेज आगे बढ़ता है। महिलाओं का रिजर्वेशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। वो संविधान का जो अमेंडमेंट 74 अमेंडमेंट हुआ उसका इंदिरा साहनी केस से कोई लेन देन नहीं है। सी दिस इज ओबीसी बीसी एससी ये जो है ये 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन महिला पुरुष का जो है उसको हम थोड़ा सा अलग रखें। महिला पुरुष का जो लॉटरी निकली है वो 50%। I suppose तुषार मेहता जी इस argument will be there. जितना भी जो विद इन लिमिट है एससी एसटी का उसको हमने कहीं ब्रीच नहीं होने दिया है। वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का मैं भी देख रहा था उस दिन जो लॉटरियां निकाली जा रही थी। अब महिलाओं का रिजर्वेशन इज ऑल टुगेदर ऑन द डिफरेंट फुटिंग, But the bench is not agreeable, sir. par with the other reservation. Bench is not agreeable. They say reservation is reservation. Whether महिलाओं का है या कोई और रिजर्वेशन है 50% लिमिट क्रॉस नहीं होती है. That's what they've said. Because We they've will make said. our submission before the honorable court. Let them pass the order which Let's see. is Let's see. Because I ultimately think acceptable. I think Mr. Tushar Mehta has been briefed by the State Election Commission, and I think they will also be present in court tomorrow. But the State Election Commission has said that भाई इसको जरा ठीक कीजिए. Very frankly But at the speaking. cost of repentance, बजाज जी मैं फिर कहता हूँ Amendment 74, which Yes, was I know- brought by I know that, my sir. dear friend Maruki ji is leader, late Rajiv Gandhi ji, and we respect that कि महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए उनको रिजर्वेशन देना चाहिए, ये वो अमेंडमेंट था। अगर वो रिजर्वेशन को आप एससी एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन के साथ समकक्ष करेंगे तब तो बात आप सुप्रीम Sir, होगा ही। सुप्रीम कोर्ट जो कह Sir, रहा है बात होगा, सही है। होगा। अदरवाइज वो रिजर्वेशन और ये रिजर्वेशन दोनों अलग अलग। नहीं सर, रिजर्वेशन इज रिजर्वेशन. Very frankly. ओबीसी आई मीन जो कोटा है वो भी वायलेट हो चुका है। बहुत सारे लोग जो अभी जो लोकल बॉडीज है पंचायत वगैरह वहां पर बहुत सारे जगह पर ये भी वायलेशन हो गया, एक्सेस में चला गया। एक्सेस में क्या? एंड आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू सर, जो आप बोल रहे हैं और उसके अलावा जो अभी प्रदीप भाई ने बताया, काफी ऐसे परिषदें, काफी ऐसी जगह देयर इज अ क्लरिकल एरर ओवर देयर. लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली सर, एंड आई थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक विद यू. अंबेडकर साहब इज आल्सो हियर नाउ, फारूकी साहब इज अगर आल्सो कोई हियर. अनियमितता हुई है तो उसको सुधारा जाएगा और नहीं तो न्यायालय कैसे सुधारा जाएगा सर? वो पीपल हैव बीन acceptable. सर पीपल हैव बीन इलेक्टेड अनअपोज्ड. इतने तो 100 के करीब तो लोग अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए हैं. अब मेरा ये कहना है कि यू आर नॉट गोइंग टू you are not going to then de-elect them and hold the elections again. That's not going to happen. बजाज साहब आपको एक चीज बड़ी विनम्रता से कहूं, इस देश में इतिहास है कि लोकसभा में भी लोग निर्दय अनपोज चुन के आए। मैं नाम बताऊं, महाराजा करण सिंह जो आज भी जिंदा है जी हैं. वो कितनी बार लोकसभा में उधमपुर से अनपोज जीत के आए, उनके सामने किसी ने फॉर्म नहीं भरा। तो आज जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ उम्मीदवार अगर निर्विरोध चुन के आ रहे हैं तो इस तरह से प्रश्न चिन्ह क्यों उठ रहा है? नहीं, वो तो मैंने देखा अजीत दादा पवार की पार्टी से भी आए हैं। लोकसभा में भी लोग निर्विरोध जीत के आए हैं। अजीत दादा पवार की पार्टी से भी आए हैं, ऐसी क्या बात? मैं वही कह रहा हूँ कि आज जो Sir, on that I have no problem. निर्विरोध जीत गया तो मैं महाराजा करण सिंह पे प्रश्न लगाएंगे क्या आप? मुझे याद है मैंने हिंदुस्तान के साथ संसदीय इतिहास को पढ़ा है, कई बार वो निर्विरोध जीत के आए हैं। जी दुरुस्त बात, उसमें कोई दो राय नहीं है. इनफैक्ट फूलपुर में जब पंडित जी पहली बार चुनाव लड़ने वाले थे, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द ऑपोजिशन टू फाइंड ए कैंडिडेट. आखिर में जबरदस्ती किसी को खड़ा किया था पंडित जी के खिलाफ जब पहली इलेक्शन हुई है, आपको याद होगा. और इनफैक्ट पंडित जी हिमसेल्फ वेंट एंड टोल्ड द स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी की कि यार किसी को तो खड़ा करो, ये गलत है बिल्कुल. आई एम नॉट गोइंग टू बी इलेक्टेड अनअपोज्ड. This is what Pandit Jawaharlal Nehru had said. I still remember. But anyway, that's a separate issue. Let me go across to Asif Faruqi साहब. आसिफ फारूकी साहब, बड़े दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है. सर आप ये बताएं, अब क्या प्रॉब्लम क्या है सर कि कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी है सर, 140 years old. Now my problem sir with the Congress is this. You know, my father was in the Congress, my grandmother was in the Congress, grandfather was in the Congress, all of them went to jail during the freedom struggle. That is, grandmother and grandfather गए, मेरे फादर जो थे वो थोड़ी देर के लिए गए. सर मैं आपसे जानना चाहता हूं सर पार्टी को क्या हो गया सर आप SIR की बात कर रहे हो, आप वोट चोरी की बात कर रहे हो, आप ऐसे शब्दों, चलिए वो तो काम कर गया, संविधान खतरे में, वो तो काम कर गया 2024 में, लेकिन आज की तारीख में यू कैन नॉट कीप फाइटिंग द सेम इलेक्शन अगेन. सर लोगों से जो जुड़े मुद्दे वो आप क्यों नहीं लेके आते सर सामने? इतने मुद्दे हैं सर आपके पास, ये समझ नहीं आता किसी को. और तो सर फारूकी साहब पूरी बात सुन ले सर पूरी बात सुन ले. क्या है कि बिहार में भी एक बहुत बड़ा तबका है कांग्रेस का, उन्होंने आकर के समझाया था कि सर ये SIR वोट चोरी किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग वोट तो दे रहे हैं, जो वोट दे रहे हैं उनका तो वोट चोरी नहीं हुआ ना. प्रॉब्लम इज आप मोदी जी को देखें, आई एम सॉरी फॉर ब्रिंगिंग मोदी जी अगेन, और अदर पीपल, अदर जितनी भी पार्टी ने जो जीत रही हैं, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी से आप प्रेरणा ले सकते हैं.
सर वो जो लोगों के हृदय के दिल के पास जो मुद्दे होते हैं वो लेके आते हैं। सर कांग्रेस ऐसा क्यों नहीं कर रही है अभी? आप जरा बताएंगे सर प्लीज, आसिफ फारूकी साहब। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधार कर दें सर प्लीज। नहीं सर, पहली बात तो ये कि जो वोट चोरी हो रही है, आप सिर्फ राहुल जी ही नहीं बोल रहे हैं। आप देखिए दूसरी पार्टियां भी जो है पोजीशन की बोल रही हैं। पीके ने, जो बहुत ही समझदार आदमी है, बहुत अच्छे तरीके से उसने सर्वे किया, लेकिन हर आदमी यही बोल रहा है कि भाई हमारे पास प्रूफ नहीं है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की जो चोरी होती है सर, इतनी आसानी से आप प्रूफ निकालना, ये पूरी स्टडी की बात है। लेकिन हर आदमी इसको एक्सेप्ट तो कर रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, आप जिस तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं वो फेयर एंड फाइन इलेक्शन नहीं होता है, जिसका इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम लोग उंगलियां उठा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 10-10 हज़ार रुपये आपने बैंकों में सबके डलवा दिया। क्या ये जायज़ बात है सर? आप डालिए, लेकिन इलेक्शन के वक्त ही आप डाल देते हैं। उसके बाद दूसरे महीने डालेंगे, नहीं डालेंगे, फिर धीरे धीरे उसको किसी न किसी टेक्निकल तौर पे उसको ख़त्म कर देते हैं, जैसा कि आपने महाराष्ट्र के अंदर किया था। तो और मध्य प्रदेश मत भूलिए। हाँ, मतलब और भी दूसरे स्टेट में। इसीलिए वोट चोरी और इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया ये पूरे सिस्टम को कि अगर इलेक्शन कमीशन ने सही वक्त पे इसका निपटारा नहीं किया तो ये तो बढ़ते जाएगा। अब उसमें बीच में आप जो बातें बोल रहे हैं वो भी लाते हैं, मुद्दे उठाते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या है सर? जब आप चोरी करके ही जीतना चाहते हैं तो वो सारे मुद्दे तो उठा ही रहे हैं लोग। हाँ, आज तो सारी पार्टियों को, लीव असाइड कांग्रेस को, ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि जब अगर चोरी करके और पैसे खिला के और इलेक्शन के वक्त इस तरीके से वर्गला के काम, भाई इलेक्शन में 10,000 रुपये आ जाएंगे सर। मेरा भी बीवी जो है जाके वो जिससे मिलेगा बोले उसको ही दो, क्योंकि ये इतनी बड़ी ब्राइब है और सीधा आपके अकाउंट में आ जाती है। तो मुझको नहीं लगता है कि दूसरी कोई भी हथकंडे या जो काम करने की बात करेंगे लोग उसके ऊपर। अंबेडकर But साहब, I want to ask you, 272 bureaucrats, judges, retired armed forces के top personnel आसिफ फारूकी साहब खुले आम चिट्ठी लिख दिया, ओपन लेटर टू राहुल गांधी जी, अब देश को मिसगाइड मत कीजिए। आप मगर उनके पीछे पड़ गए। आप कह रहे हैं कि आरएसएस एजेंट है, ये बीजेपी एजेंट है, ये जजेस के करप्शन चार्जेस थे, ये आर्म्ड ऑफिसर ने ये भी पकड़ा गया। सर वो 272 जितने लोगों ने लिखा है, आप उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं जिनके ऊपर बार बार उंगलियां उठाई जा चुकी हैं। वो एक जहन के लोग हैं, एक पार्टी के लोग हैं। इससे पहले भी अच्छे लोगों ने कांग्रेस के फेवर वाली बातें की थी, जो कि बैलेंस लोग थे, नॉट बिकॉज कि मैं बोल रहा हूँ। उनके भी बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। तो गवर्नमेंट है तो उसके ऊपर कोई नहीं वो एक्शन लिया उस वक्त। तो उन्हें आज क्यों लोगों को बुरा लग रहा है कि 272 लोग राहुल गांधी को लिख रहे हैं? यही बात तो मोदी जी और उनके तमाम जो दूसरे मिनिस्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बड़ी सख्ती से एक तरफा वो लोग फैसला करते हैं और लोगों को थ्रेटन करके ऐसे काम करवा लेते हैं जिसके ऊपर कहीं ना कहीं शक की सुई घूमती है और उसको क्लेरिफाई नहीं करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कैसे बर्दाश्त किया सर? इलेक्शन के बाद बिहार में 10,000 रुपये दिए गए, क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन लिया? सर तो उसके ऊपर आप कोर्ट जा सकते थे, बट यू डिडंट। लेकिन वो अलग बात है। आई एग्री विद यू, देयर इज अ टेम्पलेट व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड नाउ। मध्य प्रदेश में लाडली बहना क्या है कि महाराष्ट्र के अंदर लाडली बहना नहीं सर, मध्य प्रदेश में लाडली बहन, महाराष्ट्र में लाड़की बहन, और वहां पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री विकास योजना। लेकिन वो बार बार नहीं होगा सर, वो एक ही बार का पेमेंट है और उसके बाद चेक होगा कि वो 10,000 रुपए आपने कैसे स्पेंड किए, क्या आपने व्यवसाय अपना खोला कि नहीं खोला, वगैरह वगैरह, वो चेक होगा, उसके बाद होगा। दैट्स अ सेपरेट इशू। बट ऑल आई एम आस्किंग यू सर इज यू हैव टू प्लान फॉर दिस बिकॉज दिस इज द न्यू टेम्पलेट। आप सिर्फ बैठ करके कंप्लेंट नहीं कर सकते सर, आपको प्लान तो करना पड़ेगा ना सर। आप बताइए। लेकिन सर अगर चोरी करके आप जीत रहे हैं तो पहले तो उस चीज को दूर करना, सारी मेहनत बेकार है ना सर। चोरी का विश्वास अकॉर्डिंग टू यू चोरी। राहुल जी ने 1 लाख ने कहा था कि चुनाव से पहले हम 1 लाख रुपया और नौजवान को दे देंगे उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए। आपने भी कहा था, बट लोग शायद माने नहीं। आसिफ फारूकी साहब, राहुल जी हर इलेक्शन में कहा था, कहने में और करने में फर्क है। मोदी जी कर गुजरते हैं सर, चाहे वो तो अंबेडकर जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं।
और उसका उसका असर आता है। आपके अकाउंट में 10,000 रुपये अगर आते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा असर आता है। जी और हमने कोशिश की कि लोगों को इस तरीके से बात बोल के सत्ते में आ जाए, जब पावर आ जाए तो उनको समझाएं कि ये आगे आने वाले दिनों के में देश के लिए बहुत खतरनाक चीज़ हो रही है, जो इस तरीके से आप इलेक्शन को लुभा के कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई चीज़ नहीं सोच रहा है। ये इंडिपेंडेंट बॉडी है सर, इनको अपने तरीके से देश के हित में अच्छा काम करना चाहिए। किसी पार्टी या किसी सत्ते से ऊपर रह के इनको बात करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए उंगली उठती सो है। लेट मी गो टू अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए सर। बजाज साहब, मैं सिर्फ एक वाक्य कहना चाह नहीं रहा सर, सर व्यास साहब, कैन आई गो टू अंबेडकर साहब प्लीज, देन आई कम हूं। ओनली वन सेंटेंस, वन सेंटेंस। बोलिए सर। मैं अम्बेडकर साहब से माफी चाहते हुए एक सेंटेंस, फारूकी साहब अभी कह रहे थे बिहार के चुनाव के बारे में, वोट चोरी वगैरह। मैं बड़ी विनम्रता से एक वाक्य पूछना चाहता हूँ। पूरे बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र में फॉर्म 17C क्या एक भी बूथ पे मिसमैच हुआ है क्या? बस उसका जवाब कांग्रेस या अन्य सर दल आप दे दे। पैटर्न बाकी उठा के देख मैं इतना ही लीजिए कहना कि चाह जो रहा था। जिस तरीके के वोट्स की गिनती के पैटर्न्स जो है, आप देख लीजिए कि वो किस तरीके से किसी मशीन के साथ में जो धांधली हो सकती है, वो नेचुरल पैटर्न्स नहीं है सर। अब रह गया सवाल कि आप बोलेंगे प्रूफ कीजिए, तो हमारे पास प्रूफ नहीं, क्योंकि हमारे पास मशीन भी नहीं मिलती है कि उसके ऊपर हम उसको चेक कर सकें कि क्या गड़बड़ हो सकता है। राइट, सो लेट मी गो टू अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब, यू वांटेड टू से समथिंग, प्लीज गो अहेड सर। या बेसिकली ऐसा है कि इनको बिहार में 10,000 रुपया दिया वो दिखता है, महाराष्ट्र में लाड़की बहन, मध्य प्रदेश में लाड़की बहना, ये सब दिखता है। इनका राजस्थान में शासन था, उनके जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने क्या क्या नहीं दिया, घर का राशन भर के दिया, घर में पैसे पहुंचाए, सब करने के बाद में भी ये हार गए और ये दूसरे पार्टी को नाम रखते हैं। इनका क्या हो गया है, एक शेर है जो है कि धूल चेहरे पे है और ये आईना पोंछते रह गए। ये इनका दुर्दैव है, भारत का दुर्दैव है कि भारत की सबसे 140 साल पुरानी पार्टी, एक तो पहले एक फैमिली को इन्होंने बंधक बना दी है, और दूसरा इनके जो एडवाइजर है वो फॉरेनर है जिनको ग्राउंड रियलिटी का मालूम नहीं। ये तेजस्वी यादव खुद बोला कि ये तुम्हारा मुद्दा इधर चलता नहीं है, तुम ये मत चलाओ, इधर के बारे में बात करो। तेजस्वी यादव के पास अच्छे मुद्दे थे, जो उसने जब डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे तभी उन्होंने युवाओं के लिए जो काम किया वो मुद्दा था। ये सब मुद्दा छोड़ के उसको लेके राहुल जी क्या कहे, तो वोट चोरी का यात्रा निकाले और जिसमें जाके मोदी जी को गाली दे दिया। तो ये बेसिकली ये सब जो चीज़ है, ये इनको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। ये इनको कितना भी नाम रखने दो, हम तो खुश है, इनके नाम रखने से कुछ नहीं होता। जनता को पूरी जो ये है वास्तव है वो पूरा मालूम है। राजस्थान में इन्होंने क्या किया, नहीं किया क्या? जी दुरुस्त वही बात। काम किया। हाँ, उसके बावजूद हार गए। जी हाँ, Ambedkar sahab, you know, Jairam Ramesh and the Pura Congress top think tank is highlighting that RSS के जो influence है भारतीय जनता पार्टी पे, and this is a US report that has been quoted, जैसे CAA is forcing this kind of rules and regulations and laws that laws को लेके आ रहे हैं। CAA ऐसे laws है जो टोटल एक कम्युनिटी के खिलाफ है। उमर खालिद उस रिपोर्ट में था, यूएस रिपोर्ट में, उमर खालिद अभी भी जेल में है, और जेल में है बिकॉज द टेंडेंसी ऑफ द बीजेपी टू रिलाई एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ आरएसएस इन द बीजेपी। क्या आर यू ट्राइंग टू इम्पोज वन काइंड ऑफ लॉ इन दिस पर्टिकुलर कंट्री, अपील टू द मेजोरिटी कम्युनिटी? अंबेडकर साहब, डेफिनेटली नॉट। अभी जैसा आपने उनका जयराम रमेश जी का जो फॉरेन रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हमारे पास रिपोर्ट है कि ये जॉर्ज सोरोस की पार्टी, उनके इन्फ्लुएंस के नीचे कांग्रेस पार्टी काम करती है, तो ये उनको मानने हैं क्या? तो फिर हम आरएसएस का जवाब देना। हम तो कम से कम देश के अंदर के लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ये तो देश के विरोधी लोग जो है, जॉर्ज सोरोस, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, उसके तहत चल रहे। right. तो इसका क्या जवाब है, आप उनसे भी पूछो ना। Right. So the other thing that I would like to know from you is your opinion on the coming corporation elections. सर, पुणे में, नासिक में, नागपुर में, मुंबई में, नवी मुंबई में, ठाणे में, हर जगह पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं जाना चाहिए। आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग एन ओपिनियन ऑन दैट सर। व्हाट इज योर ओपिनियन, अंबेडकर साहब? सर, बेसिकली कि ये एक लीगल प्रोसेस है, जो जैसे मेरे भाई साहब बोल रहे थे, वो भी एक एडवोकेट और इलेक्शन में तज्ञ है।
तो उन्होंने जो बोला वही बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगी उसके सामने जो रखा जाएगा, उनको कोई सच्चाई उसमें मिली तो जो डिसीजन देंगे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जी। ये 4 साल से सुप्रीम कोर्ट इसमें डील कर रही है और उन्होंने जो जो कहा है वो ये स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेट किया है, उसमें दो राय नहीं So है। हम तो we should बिलीव इन know. सुप्रीम कोर्ट। We should know by tomorrow evening because the case But is coming up Ambedkar tomorrow साहब, evening. is the country in chaos? राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है आज की कंट्री इज इन chaos. आप मुस्कुरा रहे हैं हमेशा राहुल जी के नाम। द कंट्री इज इन chaos बिकॉज एसआईआर, कांग्रेस का कहना है, राहुल जी का कहना है, वी विल फाइट एसआईआर पॉलिटिकली, वी विल फाइट एसआईआर ऑर्गेनाइजेशनली एंड वी विल फाइट एसआईआर लीगली। नाउ दैट्स अ वेरी टफ स्टेटमेंट राहुल जी जो कह रहे हैं। अंबेडकर साहब, अभी जो भाई साहब ने शिवसेना का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन्होंने जो बोला था कि कितने 17 सी उन्होंने फाइल किए, कुछ भी नहीं किया। अभी बीएलओ उनके कितने हैं, उन्होंने क्या काम किया है? और तो वो उसका जवाब दे ना। वो बाकी सब बात करते हैं हवा में, जैसा ये आदित्य ठाकरे जी की बात उन्होंने कही, ये हवा में बात सभी करते हैं। मगर तुम बीएलए बूथ लेवल एजेंट जो तुम्हारे वो क्या करते हैं? बीएलओ को कोऑपरेट करते हैं क्या? हर घर में हर गली में एक ही यादी रहती, वो 1000-1200 की यादी रहती है। तो उनको सफिशिएंट टाइम है, वो जाए घर घर और जो झूठे मतदार उनको लगते हैं उसको निकाले। उसका एक प्रोसीजर है, फॉर्म 6 है, 7C है, जो भी फॉर्म उनको है वो फॉर्म यूज करे। उनको किसी जी। ने रोका है ना, इलेक्शन कमीशन ने रोका है ना भाजपा ने रोका है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार सुशील व्यास जी बार बार ये बात कहते हैं कि भाई अभी तक कितनी कंप्लेंट्स आपने फाइल करी, मतलब प्रोसीजर आपने फॉलो किया नहीं और आप चाहते हैं कि ये एकदम हो जाए। तो इफेक्टिवली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट विच इज द रीजन व्हाई परहैप्स देयर आर टू मेनी टेकर्स एट द मोमेंट फॉर द कांग्रेस कैंपेन। आई विश द कांग्रेस हैड स्टक टू बेसिक्स, बट दे आर नॉट स्टिकिंग टू बेसिक्स, दे आर नॉट इवन स्टिकिंग टू देयर ओन बेसिक्स। मे बी दे शुड गो बैक टू महात्मा गांधी। जी बोल रहे थे आप, कुछ बोलिए। सर एक पॉइंट उसमें और है जो उनको कैसे समझ में आता नहीं या उनके कंसल्टेंट को समझ में आता नहीं। जब वो आप वोट चोरी की बात करते हैं, डुप्लीकेट वोट की बात करते हैं, एक एड्रेस में 100 मतदार है करके बात करते हैं, तो ये मतदार नोंदणी का काम कौन करता है? मतदार करता है। और वो मतदार के ऊपर तुम आरोप लगा रहे कि एक वो उन्होंने हरियाणा में क्या आरोप लगाया कि एक ब्राजीलियन जो मॉडल है उसने आके महाराष्ट्र ये हरियाणा में मतदान किया। नहीं, उसकी तस्वीर इस्तेमाल की गई, ये बोला हाँ, जी। हाँ, नहीं, उन्होंने मतदान किया 17 जगह पे, ऐसा उनका आरोप था। और उसने उधर से स्टेटमेंट दिया कि ये कितना मतलब गलत आरोप है करके। तो ऐसे लेवल के आरोप करके तुम ग्राउंड में उतरो ना। तुम सब एयर कंडीशन में ये सब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते उसमें सब शो दिखाते, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो तुम मतदाताओं के ऊपर आरोप लगा रहे, क्योंकि जो आदमी एक जगह पे नौकरी करता है उसका ट्रांसफ़र हो गया, दूसरे जगह पे उसको नौकरी लग गया, तो वो भूल जाता है पहले जगह का जो अपना रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करने का। तो ये उसके ऊपर आरोप है, ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास खुद का ओन मशीनरी नहीं है। अभी बंगाल में वही प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं कि बीएलओ काम करने के लिए तैयार नहीं, जो बीएलओ स्टेट की मशीनरी से ड्रॉ किए गए हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये आरोप है नहीं, ये मतदाताओं के ऊपर किया हुआ आरोप है, जिसको मतदाता अच्छी तरह से उनको रिप्लाई दे देते हैं। लेकिन सुशील व्यास जी, अब आप ये बताएं कि भाई डिस्कशन तो हो रहा है, वोट चोरी के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उनकी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के ऊपर। वो तो हो गया ना सर। अब दैट वे व्हाट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू इज हाउ डज द इलेक्शन कमीशन कम बैक एंड regain its complete credibility, honesty and integrity, at least in perception terms? सुशील व्यास जी। बजाज जी, ये जो प्रचार चल रहा है वोट चोरी का, उसका मुझे नहीं लगता है कोई ग्राउंड लेवल पे असर हो रहा है। कि बिहार, उदाहरण के लिए मैं बिहार की जनता की बात कर लूं, बिहार में 15 दिन तक ये लोग गली गली घूमे, वोट चोरी, अंत में क्या हुआ? ऐतिहासिक, आज तक जितने परसेंटेज वोट नहीं हुए उतने परसेंटेज वोट बिहार की जनता ने निकल के दिया और इनके खिलाफ दिया। ये तो अब साबित हो गया ना। तो आप क्या किसको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं? तो जनता भी अब समझदार है। इस हिंदुस्तान का मतदाता अगर वो फॉर्मल रूप से शिक्षित नहीं है ना, उसके पास डिग्री नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास वोट किस तरह से डाला जाए उसकी समझ नहीं है। उसके ग्रामीण मतदाता के पास हमारे से ज्यादा समझ है कि कैसे वोट डालना और किसको वोट डालना और कब डालना। तो ये जो बिहार की जनता ने प्रूव कर दिया, हाईएस्ट इतना परसेंटेज कभी आज तक इतिहास में 1951 से लेकर आज तक कभी इतने वोट गिरे नहीं जितने वोट इस बार गिरे। आप कह दीजिए वो भी गलत गिरे,
भाई और कहना हो तो मैं फारूकी साहब से विनती करना चाहता हूं, अभी तो 14 तारीख को गिनती हुई है, आज 24 है, अभी 33 दिन बाकी है। इलेक्शन पिटीशन फाइल करवा दीजिए बिहार हाई कोर्ट में, हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। तो तब तो सारी संवैधानिक संस्थाओं पे खाली आरोप मत लगाइए, उसका एक संवैधानिक तरीका है उसका विरोध करने का। करिए, इलेक्शन पिटीशन फाइल करिए। ओपन अंडर लेटर सेक्शन 80 इंडियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंदर प्रोविजन है 45 दिन के बाद, काउंटिंग होने के बाद, अगर आपको लगता है कोई गलत काम हुआ है, जाइए इलेक्शन पिटीशन फाइल कीजिए, अभी 33 दिन है। उसके बाद अगर कुछ नहीं होता तो हम आपके साथ में मैदान में आएंगे, आपका जवाब देंगे। बट सुशील व्यास जी, ममता बनर्जी ओपन लेटर टू द इलेक्शन कमिश्नर, बोले कि योर एसआईआर इज ड्राइविंग अवे, पलायन हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, एरिया छोड़ के भाग रहे हैं। ममता बनर्जी, आप इसको एक टूल लेकर एक ही सेक्शन के लोगों को इलेक्शन प्रोसेस से हटाना चाहते हो। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जी वही कर रहे, एसआईआर का टोटल विरोध, सेम थिंग द कांग्रेस। ना एक पार्टी कंटिन्यूअसली ओपन डिफाइंस कर रहे, तो डोंट यू थिंक दैट कहीं ना कहीं द गवर्नमेंट, द इलेक्शन कमीशन हैज टू रीथिंक, इंट्रोस्पेक्ट? व्यास जी, रीथिंक इन व्हाट वे? नाम्बियार जी, रीथिंक इन व्हाट वे, ऑन व्हाट पॉइंट? अभी पलायन हो रहा है ममता बनर्जी। एसआईआर जो है, अगर एसआईआर क्या प्रोविजन हिंदुस्तान के कानून के अनुसार नहीं है क्या? एसआईआर इज प्रोवाइडेड इन इंडियन रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में जो है वो उसमें है, उसमें प्रोविजन है एसआईआर का। क्या उस तरीके से नहीं हो रहा है, उसको अलग छोड़ के कहीं से हो रहा है तो बताइए। उसको अगर हम कोई अलग धाराओं के अंतर्गत वहां पे हो रहा है एसआईआर तो बताइए। बिहार में भी इसी तरह की बातें, जिस तरह की चर्चा आप बंगाल को संदर्भ में कर रहे हैं, बिहार में भी इसी तरह से हुई। और ज्यादा चर्चा जिस तरह की हुई सीमांचल में, बजाज साहब जानते हैं, पूर्णिया वगैरह, वहां क्या हाल हुआ मालूम है आपको? उनकी 2 सीट नहीं आई वहां पे, दुरुस्त बात। या तो भाजपा को मिली है या फिर वो एएमआई ले गई है 5 सीट वहां पे लगातार। तो ये जो तरीके है ना, वो ग्रामीण जनता को भी समझ में आ गया कि ये लोग खाली हवा बना रहे हैं, ये खाली हवाई बात कर रहे हैं, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। एक सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी भाग रहा है इलेक्शन, वेस्ट बंगाल में व्यास जी इलेक्शन प्रोसेस से भाग रहे हैं। हाउ डू यू सी दैट? ये नाम्बियार जी, मैंने अभी कहा सीमांचल ऑफ बिहार सारी की सारी सीट एएमआई ले गई, 5 सीट की 5 सीट। बताइए अब कहां भाग रही है? मुझे वो तो मतदान देने वोट के अंदर भाग रही, वोट देने के लिए भाग रही, और दिया उन्होंने, जम करके वोट दिया, देश के संविधान में अपना विश्वास प्रकट करके वोट दिया। कौन जीता कौन हारा वो ठीक है, लेकिन देश की जनता ने उनको गलत साबित किया और बड़ी मात्रा में आकर के वोट दिया। let me go to 5-6 सीटें उन्होंने एक विचारधारा को दी। मैंने एकनाथ शिंदे जी ने खुलेआम बोला कि मी रडणारे नाही लढणारे माणूस आहे, यानी जो इंपैक्टफुल उन्होंने एक डायलॉग कहा कि हम रोने वाले नहीं है, लड़ने वाले हैं। ये क्या है? मींस किस एक तनाव सा वातावरण, देवेंद्र फडणवीस वर्सेस एकनाथ शिंदे, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सो एकनाथ शिंदे ने बॉयकॉट किया, लास्ट आपके मिनिस्टर्स ने बॉयकॉट किया लास्ट कैबिनेट। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैच्यू में चीफ गेस्ट थे नवी मुंबई में, एकनाथ शिंदे जी ने बॉयकॉट कर दिया। एक क्रिमिनल लॉ का प्रोग्राम था आजाद मैदान में, एकनाथ शिंदे रिफ्यूज टू गो देयर। क्या प्रोटेस्ट चल रहा है व्यास जी, किस प्रकार देखते हो आप? अमित शाह जी के पास गए, अमित शाह जी को कहा कि सम पीपल, बहुत महायुति के कुछ लोग स्पॉइलिंग द फेवरेबल पॉलिटिकल रिलेशनशिप दैट इज एग्जिस्टिंग इन द महायुति। हाउ डू यू सी दैट? क्या हो रहा है? नाम्बियार जी, आपने दो व्यक्तियों का नाम लिया, एक तो मेरे सर्वोच्च नेता एकनाथ शिंदे जी का और एक वर्तमान लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का, और कहा कि उनके अंदर में आन बन है, और तमाम इंसिडेंट्स आपने गिनाए। आज आपने हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री फडणवीस जी का पब्लिक डोमेन में बयान है एकनाथ शिंदे जी के, उनके संबंध को लेकर आपने शायद सुना होगा। उन्होंने कहा हमारे बीच में कोई तनाव नहीं, हमारे बीच में बिल्कुल आपसी समझबूझ है, हम एक दूसरे से मिल करके हर चीज एक दूसरे को बता के करते हैं हमारे। और ये जो है, दुर्भाग्य से कुछ मीडिया के हमारे साथी जो उस तरह की चीज चाहते हैं, वो ये तनाव पैदा करने की कोशिश मात्र मीडिया में कर रहे हैं, हमारे आपस में कोई तनाव। ये तो रहा हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे इस समय सर्वोच्च नेता है एनडीए के, उनका बयान, तो अगर उसको हमको मान लेना चाहिए। दूसरी चीज, एकनाथ शिंदे जी ने अगर ये काम में लड़नारा नहीं लड़नारा है, तो भाई बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना का जो कार्यकर्ता होगा वो तो मैदान में लड़ने वाला ही होगा, क्योंकि हम 20% पॉलिटिक्स करते हैं, 80% राजकारण करते हैं। तो हम तो जनता के बीच में रहते हैं, हम तो माननीय उद्धव जी जैसे ऑनलाइन नहीं है, हम तो ऑफलाइन है, जनता के बीच में 24/7 रहने वाले लोग हैं। तो हमारे नेता ने, तो सर, why you not attending cabinet meetings? वो किसी के खिलाफ थोड़ी कहा, ये तो हमारी विचारधारा है,
अरे बाला साहब ठाकरे ने हमें ये लिगेसी में दिए ये विचारधारा कि हमेशा जनता के बीच में रहो, 80% जन सेवा का काम करो, मात्र 20% राजनीति करो, यही शिंदे जी कर रहे हैं. Which is fine, sir, but why are you not attending cabinet meetings? There are 3 cabinet meetings in which not a single member of Eknath Shinde Saab's party was there. Why? This leads to a lot of questions. उसी बजाज जी, उसी कैबिनेट मीटिंग की जिसमें आप बात कर रहे हैं उसमें शिंदे साहब खुद मौजूद थे कि नहीं थे? पहले मैं वहां से शुरू करूं. शिंदे साहब खुद मौजूद थे कि नहीं थे? एक में थे, बाकी 2 में नहीं थे. नहीं, एक ही में चर्चा हुई है. ये जो चर्चा हुई है मीडिया के अंदर, वो उसमें वो खुद थे. बाकी आदरणीय बावनकुले जी जो इस समय हमारे ये सारे चुनाव को एनडीए की तरफ से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि इंक्लूडिंग बीजेपी एंड अजित पवार पार्टी, उनके एरिया में लास्ट दिन था नॉमिनेशन भरने का, इसलिए सारे नेताओं को वहां इंचार्ज बनाया गया. वो अपने अपने इलाके में थे, इसलिए खाली शिंदे जी के नहीं, अन्य मंत्री भी उस समय अनुपस्थित थे. तो ऐसी बात नहीं है, इस तरह की कोई गलतफहमी नहीं है. बड़ी कोऑर्डिनेशन से वर्तमान सरकार चल रही है, कोई आपस में अनबन है नहीं. ये मात्र दुर्भाग्य से उस समय चुनाव का लास्ट दिन था नॉमिनेशन भरने का, इसलिए कुछ मंत्री, चाहे वो इस दल के हो, हमारे हो, बीजेपी के भी हो और या अजित पवार के, कुछ उस दिन अनुपस्थित रहे. उसका कारण कोई गुस्सा या अनबन या उस तरह की कोई बात नहीं. Right, so we believe you. Let me go across to आसिफ फारूकी साहब. आसिफ फारूकी साहब, आप ये बताइए, हर जगह पर ये देखा गया है, हर जगह पर, कि कांग्रेस का, फॉर एग्जांपल कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में, वहां पर आपकी जो ग्राउंड पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपका संगठन है, बहुत अच्छा है. बाकी हर जगह पे आपका संगठन अच्छा नहीं है. इनफैक्ट जैसा कि मैं यहाँ पे बार बार बोल चुका हूं, अभी तक बीएमसी के चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए और मेरे घर के अंदर, मेरे घर पे बीजेपी के लोग आ चुके हैं. हमारी बिल्डिंग में और आसपास की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आ चुके हैं, ये कहने के लिए कि भैया कॉर्पोरेशन के इलेक्शन आने वाले हैं, प्लीज जब भी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो, आप मुंबई छोड़ करके मत जाइए, आप वोट दीजिए. पिछली बार भी जब असेंबली के इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस का कोई नहीं आया और बीजेपी के लोग 4 बार आए. मैं फिर आपको बोल रहा हूं सर, द फैक्ट इज, एज फार एज योर ऑर्गेनाइजेशन इवन इन मुंबई इज कंसर्न और इन पुणे इज कंसर्न और नासिक और नागपुर, सर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, आप बताइए ना. आसिफ फारूकी साहब. सर, हमारी कभी भी कांग्रेस पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी रही नहीं, और शुरू से इसमें जो है ये एक विचारधारा की पॉलिटिक्स थी जिससे पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ था. आज़ादी में इन्होंने अपना योगदान किया था और जिन लोगों ने आज़ादी लड़ी थी उन्होंने ये पार्टी बनाई थी और उससे पूरा जंग लड़ी और अंग्रेज़ों से छुड़वाया और उसके बाद ये सत्ता चल रही है. तो ये किसी पर्टिकुलर जाति और किसी एक कम्युनिटी के लिए के लोगों की नहीं थी, एक विचार से, और उसी विचार के तहत हम लोग लड़ रहे हैं. ये तो सिर्फ एक इल्ज़ाम दे रहे हैं कि एक फैमिली जो है उसके लिए लगी हुई है. नो डाउट गांधी फैमिलीज़ ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, अगर आप उनको देख लें तो कोई एक आपको हिंदुस्तान में ऐसी फैमिली नहीं मिलेगी जिन्होंने इतना बड़े सेक्रीफाइस किए हैं उसके लिए. तो मैं अपने दोस्तों से ये बात कहूँगा कि इस तरीके का इल्ज़ाम न दें. सर आपसे एक सेकंड सर, एक सेकंड. तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ सर, ये मैं आखिर में एक्चुअली सवाल पूछना नहीं चाह रहा था लेकिन पूछना बड़ा अनिवार्य हो जाता है क्योंकि इट इज़ कंटिन्यूइंग. क्या नाम है सर उनका, आपने? असलम शेख साहब. हाँ, हमारे आदरणीय सामान्य मित्र हैं अमित साटम साहब, उन्होंने कहा है कि असलम शेख पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी बुलाए उनको. साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बीएमसी का मेयर कभी खान नहीं बनेगा. मतलब कौन बना रहा है खान को, मतलब ये क्या है सर, जरा बताओ इसके बारे में बोलेंगे. ये इनकी जो जहनियत है डिवाइड एंड रूल वाली, ये बोलते हैं कि हम किसी फॉरेनर से मदद नहीं लेते और बजाय तो ये अपने आप को ऐसा देशवासी बनाते हैं, लेकिन इनके आप तरीके देख लीजिए तो सारे तरीके डिवाइड एंड रूल के हैं जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी और मन मुटाव करके करते हैं. और इस लहर के अंदर थोड़ा इनकी ये सब पॉलिसीज़ भी कभी कभी काम कर जाती है क्योंकि आदमी देखता है कि नहीं मुसलमान है, हिंदू है, इसको मैं साथ दूंगा. अच्छे पढ़े लिखे लोग इससे बहक जाते हैं सर और इसको कंट्रोवर्सी क्रिएट करके ये उससे अपना गेन हासिल करना चाहते हैं. ये खुद एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन ये बहुत जग जाहिर है. क्यों नहीं ये लोग इलेक्शन, इतना आवाज़ें उठ रही हैं, राहुल जी बोल रहे हैं, इनको भी तकलीफ़ है, कहीं कहीं
सबको लगता होगा कभी कभी कि क्या ये बातें बोलते हैं। ठीक है, तो कागज से क्यों नहीं एक स्टेट का करवा के देख लें सर, और सबका मुंह बंद हो जाएगा। आसिफ फारूकी साहब, मोदी जी, मोदी 3.0 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पूरे दुनिया में चर्चित है। मोदी जी विश्व गुरु, और अब मोहन भागवत जी ने कहा कि विश्व गुरु पहले था और अभी विश्व गुरु होने वाला है। अगेन 2047 टारगेट है विकसित भारत का। तो इतने सारे रिफॉर्म्स, इतने सारे इकोनॉमिक, मोहन भागवत जी का कहना, आरएसएस खुद लीड ले रहा है कि कह रहा है वी आर गोइंग टू बी विश्व गुरु, होल वर्ल्ड इज गोइंग टू लर्न विद अस। आप कैसे देखते हो आरएसएस का स्टेटमेंट, किस प्रकार से देखते हो? सर ये नाम रख लेने से कोई वो शेर नहीं हो जाता कि मैं उसके काम करने से होता है। आप विश्व गुरु एक नाम रख लेने से, कपड़े अच्छे पहन लेने से, चंद लोगों को प्लेन में फर्स्ट क्लास में जाके और अपनी खाने अच्छे अच्छे पोस्ट कर देने से सोशल मीडिया पे आप विश्व गुरु नहीं हो जाएंगे सर। आप देख लीजिए कि डॉलर का रेट कहाँ जा रहा है, पेट्रोल की प्राइसेस कहाँ पे जा रही हैं, हमारे एक आम जिंदगी कितनी महंगी हो गई, यहाँ डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, नौजवानों को यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़े लिखे नौजवान जो है आज भी सड़कों पे छोटी छोटी जॉब्स करने के लिए परेशान है। तो मेरे ख्याल से विश्व गुरु से ज़्यादा अच्छा है कि ये अपने देश को मजबूत करते और इस किस्म के स्लोगन्स जो है बंद करते सर। हम इस स्लोगन्स के बातों में कम से कम हमारे विचारधारा के लोग इस स्लोगन्स में नहीं आने वाले हैं। मैं आज आपको एक कंट्रोवर्शियल बात बोलता हूँ। बोलिए। जिस तरीके से इन्होंने बाबरी मस्जिद के इशू को ढाका छुपा है, हम तो बहुत खुश हैं सर, जान बच गई, खून खराबे से अच्छा है वो जगह चली जाए, लेकिन संविधान के तहत इन्होंने नहीं की, ये आस्था के तहत की है, ये गुंडागर्दी और जोर जबर और दबाव के तहत की है। ये काम कांग्रेस पार्टी भी कर सकती थी सर, या जो भी सत्ता में रहता कोशिश वो तो कर करी थी सकता सर, लेकिन कभी उन्होंने वो डिस्प्यूट जो है किसी रिलीजन का, किसी आस्था का नहीं था, वो डिस्प्यूट था प्रॉपर्टी का, और आपने उसको किया। ठीक है, हम भी खुश इसलिए मान रहे हैं कि हम भी इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते कि किसी की जान खून खराबा हो एक प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन ये आगे सोचना पड़ेगा सर कि इस किस्म के आप अगर फैसले करेंगे तो हालात अच्छे नहीं रहेंगे। बस ये मैं बोलना चाहता हूँ। राइट, सो लेट मी गो अक्रॉस टू अंबेडकर जी। अंबेडकर साहब। अंबेडकर साहब, फाइनल वर्ड फ्रॉम यू। सर आप बताएं, हर बार जो है यही बात सामने आ जाती है, जैसे अभी अमित साटन साहब को क्या जरूरत पड़ी थी बोलने की, वैसे भी द बीजेपी इज फार अहेड। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, मुंबई शहर में, मैं तो मुंबई शहर का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, आज भी अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी विल स्वीप द इलेक्शंस। हो सकता है कि सुशील व्यास जी मेरी बात से सहमत ना हो, आसिफ फारूकी साहब तो बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे, लेकिन बीएमसी के इलेक्शन में बीजेपी जीतने वाली है। तो ये सब बोलने की आवश्यकता क्या पड़ गई सर? यू आर विनिंग एनीवे। अंबेडकर साहब, आप देखिए न्यूयॉर्क में ममदानी चुन के आ गए, उसके बाद में वहाँ के न्यूयॉर्क के जो क्लेरिक्स है उनके कोई वीडियोस सर्कुलेट हो रहे हैं, आपने शायद उनको देखा है सर, देखा है। हाँ, तो हर घर में अभी मुस्लिम पैदा होगा, हर घर में मुस्लिम सर आपको खुशी आदमी- नहीं है क्या ममदानी आ गया? चलिए एक बात बताइए। नहीं, ममदानी आया, हमको बहुत खुशी है, और ममदानी तो बोलिए कि इस हिंदुस्तानी आया। मानसिकता नहीं है, ममदानी नहीं इस आया सर, मानसिकता हिंदुस्तानी का आया। नहीं है, इसमें भी वो खुशी विश्व है गुरु हमको। वो है। क्यों मगर आप लोग उसको वो जो करते हैं? जो सेकंड उसको लेवल रिलीजन से जोड़ते हैं हर चीज को इंग्रेडिएंट्स सर। है, वो उसने इंग्रेडिएंट रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं की है, अगर आपने उसको फॉलो किया होगा। वो जो रवैया आप है, क्यों यहाँ पे वो डिवाइड इसको करना चाहते कोई हैं? भी खान और अपन मोहम्मद सहन और नहीं शेख कर क्यों चक्कर में सकते, पड़े हुए हैं? इसलिए हमारी जनता को इनको चेतावनी देनी पड़ती है, इसलिए अमित जी का वो स्टेटमेंट है। हाँ, Right. चेतावनी अंबेडकर साहब, आप No, but I would like to answer. नहीं, sure. But I would like to answer आपकी आसिफ क्या फारूकी साहब। मानसिकता है सर? इससे आपको आसिफ फारूकी लगता है साहब। कि आप कितना छोटा सोचते हैं। अरे आसिफ फारूकी साहब, आपने मुझसे नहीं पूछा कि क्या मैं खुश हूं कि नहीं हूं कि जोरान ममदानी बन गया न्यूयॉर्क का मेयर। मुझसे भी तो पूछ लीजिए वो आपसे नहीं पूछेंगे सर, कोई आप भी RSS समझदार के सर, आदमी मुझसे हैं। भी तो पूछ आप लीजिए। आरएसएस के आदमी है सर। हाँ, करेक्ट है। हाँ, किसने मना किया? आपको आई वर्क विद नानाजी देशमुख फॉर 4.5 years। जिसको सत्ता की भूख है वो डिवाइड एंड रूल करके काम करेगा। अरे सर, नानाजी कांग्रेस ने देशमुख वही ऐसे किया शख्स इतने साल थे। तक, 60 साल अच्छा, मैं तक। छोटी सी बात आपको बताता हूँ, 1979, 1980, 81 की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, गोंडा में पूरी ग्वाइटर बेल्ट जो है ना, ईस्टर्न यूपी में आप ही का इलाका है जहाँ से आप आते हैं, जी, वहां पर हम लोगों ने बहुत काम किया सर।
इतना काम किया, ऐसे ऐसे गांव के अंदर हम लोगों ने काम किया जहाँ पर बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, नदी के पास जाकर के हगना पड़ता था, मुतियाना पड़ता था, वहीं पर जाकर के मिट्टी से अपने आप को साफ करना पड़ता था। ठीक है सर, वहाँ पर हम लोगों ने काम किया और आरएसएस के सभी लोग हमारे साथ थे, ये भी आपको बता दूं। और ये भी सबसे पहली बार मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, 2 महीने के लिए नरेंद्र मोदी जी भी आए थे वहाँ पे काम करने के लिए, मैं भी था साथ में, हम लोगों ने मिलके बैठ करके रोटी खाई है। ऑफ कोर्स मिस्टर मोदी मे रिमेंबर, नॉट रिमेंबर, आई डोंट नो, बट बाय द वे आई वाज द फर्स्ट पर्सन वे बैक इन 2002 to state very clearly Narendra Modi will be the next Prime Minister of India at some point of time. But that's a separate issue. All I'm trying to tell you is, in terms of what Zoran Mamdani is, Zoran Mamdani साहब का एक बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू है सर, उसमें उन्होंने कहा है, people are surprised that I'm a Gujarati Muslim, and which is absolutely true. I am one of the last few left because Modi killed everybody in 2002. सारे गुजराती मुसलमानों को मोदी जी ने मार दिया 2002 में। ये जोरान ममदानी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है सर। हाउ कैन आई लाइक सच अ गाय? क्या गुजरात में सारे मुसलमान मर गए सर? 3.8 करोड़ मुसलमान आज भी गुजरात में हैं। जोरान ममदानी कहता है आई एम द लास्ट गुजराती मुस्लिम अलाइव। अब आप बताइए आसिफ फारूकी साहब, नहीं सर, why are you मारने का happy with मतलब this ये guy? नहीं कि जान मारने का मतलब है कि Why are you happy with this guy? नहीं, तो गुजरात में सर, मुसलमान सब मर वो गए। सबको मालूम है सर, ये इस तरीके की बात का मतलब ये नहीं है कि जान से मार डाला। इस तरीके का मतलब है कि आपने एक खौफजदा कर दिया है, खौफजदा कर दिया है गुजरात के मुसलमानों को। वाह, चलिए। You know, Ambedkar Sahab, why people, the minority feel that RSS, BJP coming together, you know, alienates one particular community or one particular section of the society? Because RSS ने डिबेट चालू कर दिया था, सोशलिज्म पे डिबेट, सेक्युलरिज्म पे डिबेट होना चाहिए, डिबेट शुड बी कंडक्टेड. नाउ दिस क्रिएट्स अ पैनिक. Hinduism will never be wiped out. Mohan Bhagwat ji, Hinduism is there, and if Hinduism dies, the whole world. So, ऐसे statement, it creates a fear, ripples of fear across the nation on one particular section of the society. So, don't you think that fear element should be removed? एक fear नहीं होना चाहिए, प्यार मोहब्बत का एक सिलसिला होना चाहिए. अंबेडकर साहब, बेसिकली उनके स्टेटमेंट को आप लोग जो गलत, जिनको मतलब लेना है वो गलत लेते, जिसको अच्छा मतलब लेना है वो अच्छा लेता है. उन्होंने जो एक पहले स्टेटमेंट किया कि भारत के हर मुस्लिम का डीएनए ये भारतीय है, हिंदू है, ये आपने क्यों नहीं आपके दिमाग में रख दिया? वो आप नहीं रखेंगे क्योंकि जो भारत के मुस्लिम है ये सब कन्वर्टेड है. वो पहले हमारे भाई थे, आज भी वो कहते हैं. हमारे इधर राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्रीय विचार मंच जो इंद्रेश कुमार जी काम करते हैं, वो सब मुस्लिम भाइयों के इधर अंदर जाके ही काम करते हैं. उनका बहुत बड़ा फॉलोइंग है उसमें. मैं पुणे में आपको बोलता हूँ, आप आपके शो पे आते हैं दारू वाला जी, हाँ, दारू वाला जी आते हैं. उनसे भी बात कीजिए आप, क्योंकि इंद्रेश कुमार जी का काम क्या है, वो सब मुस्लिम कम्युनिटी में काम करते हैं सर, और वो आरएसएस के प्रचारक है. गए 40 साल से वो काम कर रहे. तो ये जो कांग्रेस ने जो एक बैड कैंपेन किया है कि आरएसएस जातीयवादी है, आरएसएस बिल्कुल जातीयवादी नहीं है. हम ये मानते हैं कि ये हमारे ही भाई है, मगर उनको गलत भड़काया जाता है हमारे विरुद्ध, ऐसा हमारा मानना है जी. और साथ में मोहन भागवत जी ने अभी ये भी कहा है कि जितने भी मुसलमान हैं वो सब हिंदू हैं, और अगर आप ये समझते हैं कि इस्लाम भारत से चले जाएगा, नहीं जाने वाला. ये सेड वेरी क्लियरली. उन्होंने He had also said, सर कितने परसेंट इनके रिप्रेजेंटेशन है सर मुसलमानों का इनकी पार्टी में, बताइए ना. उनका आइए ना, he is welcomed everybody. ये आप ज्वाइन नहीं कर रहे तो क्या करेंगे? चुन के आए. बिहार में एआईएमआईएम को क्यों मत देना पड़ा मुस्लिमों को? आपके पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं. दूसरी पार्टी की बात छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए. आपके पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं है मुस्लिम जनता को. आप भूल जाइए, कितने मुसलमानों को आपने अपने साथ में रखा. बताइए आप मेरे को, तो पहले से ही इतनी बड़ी आप जो है वहाँ पे हिंदुस्तान चला रहे हैं. बिहार में क्या हुआ वो बताइए. कितने मिनिस्टर हैं? एआईएमआईएम क्यों आया बिहार की बात करते हैं? हैदराबाद की लोकल पार्टी है, वो क्यों आई बिहार में? बंद कीजिए, डिवीजन करना बंद कीजिए. अभी असलम के नाम पे आपने क्या जरूरत थी आपको इस तरीके की बेकार की यहाँ का खान को मेयर नहीं बनने देंगे? ये भड़काने का काम है आपका. ये इलेक्शन में हार गए और भाजपा ने एनडीए में जो यादव खड़े किए थे उसमें से 90% चुन के आए. तो इनके नाम एम रहे ना इनके वाई रहे, ये सब फिनिश हुई पार्टी है जी. Which is all right, sir, but at the same time, what Farooqi Saab is saying is that there is a fear among Muslims
perhaps created by others or whatever, that the BJP is anti-Muslim. सीधी बात है ना सर. तो मेकर साहब, I think being in government and being in state government in so many states, perhaps the BJP needs to reach out to everybody. they What are do you trying think, sir? to, they are trying to, ये लोग उनको बहकाए, जी. बहकाते हैं ये लोग उनको. At some point of time, in a later show, we'll have a full discussion on divisions within the Muslim community, especially the Pasbanda community, and we will see where everybody stands. व्यास जी, the debate चल रहा है एकनाथ शिंदे जी वर्सेस राज ठाकरे जी एंड उद्धव ठाकरे जी. एक तरफ एकनाथ शिंदे जी, दूसरी तरफ राज एंड उद्धव ठाकरे जी. ये कि ब्रांड ठाकरे किसका, हुज ब्रांड ठाकरे, ब्रांड ठाकरे कौन है, तो किस प्रकार से आप देखते हैं हुज गोइंग टू अल्टीमेटली सक्सीड, विचार या शायद राज ठाकरे बोल रहे कि प्रबोधन ठाकरे जी को और बाला साहब ठाकरे जी को एकनाथ शिंदे समझ नहीं पाए. सुशील व्यास जी. विनम्रता के साथ अगर वो खुद ही समझ जाते, 15-16 साल पहले पार्टी छोड़ के क्यों चले जाते? वो तो खुद ही समझ लिए क्या? और अगर समझना किसको है, अगर कोई भी राजनीतिक दल जो आखिर में समझता कौन है, मतदाता ना, तो 2.5 साल मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा करने के बाद पिछले साल जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, मेरे सर्वोच्च नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री एनडीए को मिला, वो जनता ने फैसला कर दिया. ये दोनों भाई लड़े थे उस समय, वो अलग अलग लड़े थे निश्चित रूप से, लेकिन दोनों के आंकड़े देख लीजिए, कितनी सीटें लड़ी, कितनी जीती, और हमारे आंकड़े देख लीजिए कि जनता ने हमको कितना प्यार मोहब्बत और आशीर्वाद दिया है. तो प्रूव हो गया है कि बाला साहब की लिगेसी, हिंदुत्व की लिगेसी किसके साथ है. अब उस पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है. वो उनका अभी हताशा निराशा में वो बयान देना उनकी मजबूरी है, लेकिन जनता ने हमको आशीर्वाद देकर साबित कर दिया कि एकनाथ राव शिंदे इज द रियल लीडर, ही इज द ओनली पर्सन, ही इज अ टॉर्च बेरर. बाला साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कोई व्यक्ति है सशक्त है तो वो एकनाथ शिंदे है. शरद पवार जी के पार्टी को थोड़ा तकलीफ है कि 35 एमएलए, उनको सूचना मिला है कि आपके 35 एमएलए अंबेडकर साहब के पार्टी ज्वाइन करने वाले बहुत जल्दी. शरद पवार जी, अब वो जब दिन आएगा, जब देख लेंगे, उस दिन भी चर्चा कर लेंगे. अगर कर भी लेंगे तो हम तो एक है ना भाई. ये तो नहीं कि कांग्रेस में चले जा रहे हैं जी. लेकिन एक चीज तो बताएं, अब वो दिन आएगा जब देखेंगे. यहां पर एक और भी चीज उन्होंने बोली है राज ठाकरे साहब ने कि बस ये आखिरी मौका है, अगर यहां पर हम मराठी मानुस को वोट नहीं देंगे तो उसके बाद हमारा कुछ नहीं बचेगा. तो इफेक्टिवली व्हाट ही हैज गिवन अप, व्हाट इज ही सेइंग? तो उन्होंने क्या गलत कहा? बार बार चुनाव में हार के बाद अगर कोई आदमी कहे कि अंतिम मौका है मेरे लिए राजनीति में बने रहने का, तो बात सही कह रहे हैं. क्या गलत कह रहे हैं? वो मन की बात जबान से कह रहे हैं, तो ये बात सही है. उनके लिए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने का अंतिम मौका है. Wonderful. Right, gentlemen, thank you very much. It's been a great pleasure talking to you. But very sad day today. धर्मेंद्र साहब has left us. धर्मेंद्र जी हमें छोड़ के चले गए. उनके पूरे परिवार को, बाकी सब लोगों को हमारी सहानुभूति. We are all with them. And of course today is also the death anniversary of my very dear friend and elder brother and former leader of Sushil Vyas Sahab, namely Mr. Murli Deora. We remember him too. मेरा सौभाग्य है कि मैं 35 साल उनके साथ एक साय की तरह काम किया, और जो कुछ भी मुझे राजनीतिक समझ है मेरे स्वर्गीय नेता मुरली देवड़ा की वजह से है. उनके नेतृत्व में मैं बहुत कुछ सीखा हूं, लेकिन आज उस पार्टी की वजह से, उनकी विचारधारा के मैं बदलाव की वजह से मेरा विचारधारा बदली, और मुझे उसकी बात का फक्र है कि मैं एकनाथ राव शिंदे के नेतृत्व में. But I really feel sad that Asif Faruqi Saab has left us as soon as I started talking about Murli Deora. So anyway, the Congress also has not remembered Murli Deora, so God bless them all. That's all that I can say. I'm thankful and grateful to the departed leader. Thank you, gentlemen. Thank you very much, sir. Thanks. Great pleasure talking to you. Namaskar. But good news for India, great news for India. That's all that I can say. Great news for the Indian economy. भारतीय economy जिस प्रकार चल रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था जिस प्रकार चल रही है, जबरदस्त है साहब. Absolutely fantastic. And as Piyush Goyal साहब said the last time that the trade delegation met people in Washington, भाई आपको करना है तो कर लो, नहीं करना तो मत करो. Thank you very much. हम लोग जा रहे हैं. That's it. If you need us, we are there. If you don't need us, God bless you. That's it. We are always there because we believe the United States of America is the oldest democracy. India is the largest democracy. Both of them have great things in common and we should be working together. Now, it's up to the Americans to decide whom they want to work with. But usually, at least in this century and the century before, after the Second World War, the Americans have shown a penchant for working only with dictatorships. They don't work with democracies. They're not very good with democracies. Look at the people they worked with all the time. All the Middle Eastern countries
and Pakistan and everybody else. They have always supported dictatorships, the Americans. And then they brought them down too. And publicly they've taken a stand that they are working for a democracy. Great, absolutely. They supported Ziaul Haq, I suppose, the shining beacon of democracy. Isn't that right? And Parvez Musharraf, another shining beacon of And democracy. they got a history of, right from the inception of Pakistan, they have been continuously. I mean, always Ayub Khan, every chief or every military chief had a direct hotline to the president of US. that's right, Yahya Khan, Yes, Ayub yes. Khan, Everyone. Ziaul Haq, Parvez Musharraf, Exactly. And now Asif Munir. and now Asim Munir. In He's the fact, field marshal in spite of losing the war, and he says he's my favorite field marshal, Mr. Trump. Mr. Trump calls him the leader of Pakistan. He does not mention Shehbaz Sharif at all. So the Americans are very comfortable with dictators because they don't have to go through processes. Seedhi baat hai. In a democracy, you have to listen to everybody. The Americans don't like listening. The Americans only like talking down at you and talking at you. That's it. And which is rather sad. Which is the reason why the Americans have lost practically every war, starting from South Korea to Vietnam to Egypt, to Syria, to Iraq, to Afghanistan. They have left chaos and confusion and dead bodies behind them. Look at them. हर जगह पर जहां जहां भी अमेरिकन गए, they have left behind a whole new degree of violence everywhere. And they call themselves what? Champions of democracy. Isn't that Torchbearers wonderful? of democracy, watchdog of democracy. Isn't that wonderful? Well, that's just about it as far as Pradeep ji and I are concerned. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें. Please do subscribe to the channel. We are always with you. Always will be with you. Pradeep The ji. fastest growing channel. When you subscribe to the icon of subscribe to Nation Now, you subscribe to the fastest growing channel of the nation, Nation Now. Fastest growing channel of the nation. Nation Now. Well, that's just about it from both of us. अपने comments भी जरूर भेजें. चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें. अगर आप लाइक करना चाहते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं प्लीज. और अपने कमेंट्स में जो भेजना हो भेजिए. We love reading your comments. And from both Pradeep ji and myself and from the rest of the team over here at Nation Now, आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. भारत माता की जय, जय हिंद. Jai Hind.